अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जनाब ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ सर एम ए रोमान खान। रुमान खान साहब फिल्म इंडस्ट्री ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਜੇ सर एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर, एज ए एक्टर और एज ए डायरेक्टर। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਚ ਹੋਇਆ सर शान दी फिल्म आई सी नगीना। ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਸਰ ਡਾਇਲਾਗ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 93 ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 95 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰੂਜ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਰੂਸ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਰੂਜ ਸੀ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ, ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਤਾਰਿਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਸਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਗੇ ਔਰ ਆਈਡੀਅਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੋ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ। ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਵੈਸ਼ੀ ਜੱਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਆਗਾ ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਖਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਤਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਾਹ ਇਸ type। ਅੱਛਾ 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 ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਰ ਜਾਵੇਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਗਾਡ ਫਾਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਮੀ ਜ਼ੈਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਬੁਲੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ 10 ਨੰਬਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 10 ਨੰਬਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਾਵੇਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਵੇਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿਮੀ ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਸਮਾਈਲ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਨਗੀਨਾ ਦਾ वही गाना, कभी तू नूरी लगनी है कभी नगीना लगनी है। वो मैंने उस गाने के ऊपर डांस करने की कोशिश की, तो आता तो नहीं था डांस, लेकिन मैंने जब कोशिश की, मैंने उस सिमी ज़ैदी की कमर पे हाथ रखा तो उसने मेरे हाथ झटक दिए, तो जावेद फाजिल साहब को कहा फाजिल साहब मुंडा ओवर हो रहा है। मैं तो वो देख रहा था जो मैंने स्क्रीन पे देख, मुझे इसमें तो था ही नहीं, तो बार कैफ। उसके बाद उन्होंने कहा जी अभी मैं फ़िल्म बना रहा हूँ दुनिया 10 नंबरी, मैं एक वक्त में एक ही फ़िल्म बनाता हूँ। जावेद फादर साहब ने कहा था मैं अगला प्रोजेक्ट करूँगा तो आपको ज़रूर बुलाऊँगा। फिर उन्होंने फ़िल्म शुरू की थी दो निकम्मे, उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, सलीम शेख और मैं, हम दोनों हीरो थे उसमें, नताशा थी, सिमी ज़ैदी उसमें भी थी, उसकी चंद शूटिंगें भी की, वो फिल्म अनलकीली ड्रॉप हो गई। इसी तरह फिर ऐसा ऐसा चल पड़ा। अच्छा तो आपने बहुत बड़ा नाम लिया डायरेक्टर हदायतकार हसन अस्की साहब का जी तो उन तक कैसे पहुंचे आप उन्होंने सर बेसिकली जब मैं आया था, मैं एज ए प्रोड्यूसर और एज ए हीरो आया था, मैं एज ए डायरेक्टर नहीं आया था। लेकिन वो कहते हैं अंदर एक इंसान के होता है ना जज्बा,
जब मैंने मुख्तलिफ डायरेक्टर्स भाइयों के साथ काम किया तो मेरा अंदर मुतमईन नहीं हो पा रहा था। ये नहीं कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, मेरा अंदर मुतमईन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये डायरेक्शन का शोबा मुझे अपनाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने सर्च किया क्योंकि उन दिनों मैं होता था मुमताज़ अली ख़ान साहब के साथ, उनकी फ़िल्म मैं कर रहा था चमक। चमक फ़िल्म एक उनकी बनी थी, वो मैं कर रहा था। और एक और फ़िल्म थी, मेरे डांस के उस्ताद थे अशरफ शिराजी साहब, उनकी फ़िल्म मैं कर रहा था अना, जो सज़ा के नाम से रिलीज़ हुई। इसका पहला हीरो मैं था फैसल कुरैशी से पहले। मैं शूट के इस्लामाबाद मरी करके भी आया। नरगिस का पहला हीरो मैं ही था। वेरी गुड। तो बाहर गए, फिर मैं सर्च किया मैंने, तो साफज़र राही साहब का जो काम मैंने देखा था, वो आगा हसन अस्करी साहब की वहशी जट, जैसे मैंने डायलॉग अभी सुनाया है, मुझे वो सबसे बेटर लगे। फिर उन तक पहुंचने के लिए मेरे एक एसोसिएट थे गुलाम हुसैन तौसी साहब, आप जानते हैं, जी उन्हें मैंने कहा कि यार मैं हसन अस्करी साहब को मिलना चाहता हूँ। देखते तो थे, ताल्लुक़ नहीं था, तारुफ नहीं था। वो फिर गुलाम हुसैन ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। उसके बाद फिर मैं ख़ुद उनसे मिलना शुरू हो गया और उनके साथ फिर मैंने 3 फिल्में चार वैसे टोटल हैं, चौथी अभी लगी नहीं है, घायल, ये जो लास्ट हुई है। 3 फिल्में एसोसिएट उनके साथ मैंने की। एक उनकी फ़िल्म थी अल्लाह आपका भला करे जोश, एक थी दिल किसी का दोस्त नहीं, एक थी अपना कहाँ है कानून, और ये चौथी थी घायल। ये फिल्में मैंने उनके साथ की। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद। अच्छा, आपने अभी कहा कि मैं आया हूँ तो मैंने नदीम साहब के साथ वकील का एक रोल किया। जी जी सबसे पहले जब आपकी फिल्म लाइन में एंट्री हुई एज ए एक्टिंग, जी। तो आपने कौन सा डायलॉग किस आर्टिस्ट, किस एक्टर के साथ बोला, वो ये- हमें बताएं। यही नदीम साहब के साथ ही बोला था। जावेद फाजल साहब ने टेस्ट लिया था। वो तो बंदे को भूलता ही नहीं है जो पहला नहीं भूला, डायलॉग, नहीं भूला। वो ऐसे बैठे सुना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिल्मों का नाम बताएं और वो डायलॉग बोल दें। सर फिल्म का नाम था दो निकम्मे और उसका डायलॉग था कि नदीम साहब जज बने बैठे हैं और मैं वकील हूँ। मैं आकर कहता हूँ माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है। मेरे मुवक्किल पर यह झूठा इल्ज़ाम लगा है और मैं अदालत आलिया से इस्तदा करता हूँ कि मेरे मुवक्किल को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। ये मेरा पहला डायलॉग। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बहुत शुक्रिया सर। आर्टिस्ट आप बहुत अच्छे हैं। सर आपकी अच्छा, मोहब्बत अब आप ये बताएं रुमान खान साहब सर। कि आपने किस फिल्म में सबसे बेस्ट रोल किया। सर रोल तो रोल होता है। मैं समझता हूँ मैंने जितने प्रोजेक्ट किए, चाहे किसी में 3 सीन किए हैं, चाहे किसी में 10 सीन किए हैं, मेरे उन डायरेक्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे अपने काम में लिया, उन्हें मैं इस काबिल लगा। जैसे आज आप दोस्तों को मैं इस काबिल लगा, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कहा, मैं सबसे तहे दिल से मशकूर हूँ आप दोस्तों का। नहीं, आप हैं इसका आर्टिस्ट, बहुत अच्छे हैं, ग्रेट आपकी है। मोहब्बत है। अच्छा, तो सुना है आपकी कोई फिल्म हीरो है, उसका क्या नाम जिसमें आप हीरो कर रहे हैं, अपने मुंह से बताएं। सर फिल्म एक मेरी मुकम्मल है, प्ले बॉय। जी जी। फनकार अंदर से तो कभी मुतमईन नहीं होता, आप बेहतर जानते हैं, आप माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं। मेरी फिल्म है एक प्ले बॉय जो इस टाइम कंप्लीट है, माशाल्लाह। बल्कि मैं ये 3 अक्टूबर को लगा भी रहा था। सेंसर के इशू की वजह से फिल्म का जो टाइटल है प्ले बॉय, उसका सेंसर ने इशू बना दिया था। वो इस्लामाबाद से मुझे वो टाइटल दोबारा पास कराना पड़ा, इसलिए थोड़ी डिले हो गई है। अब कोशिश कर रहा हूँ, मौसम भी देख रहा हूँ, सर्दी बढ़ रही है, कि या तो ये है कि इसी महीने के एंड तक लगा दूँ या फिर इसको मैं ले जाऊँ मार्च में। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अब इस फिल्म में आपने काम किया है, बिल्कुल रेडी है, जी लगने के लिए तैयार है। बेशक। इसका कोई आपको जो बहुत डायलॉग पसंद हो वो सुनाए। प्ले बॉय का टाइटल सॉन्ग, जो टाइटल डायलॉग होगा प्ले बॉय लड़के का। सर इसका तो ये कह लें, क्योंकि मैंने इस पर जितनी मेहनत की है, जी जी। मेरे लिए तो औलाद है। इसके डायलॉग भी, क्योंकि इसका राइटर भी खुद हूँ और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भी खुद हूँ,
मेरे लिए तो इसके सारे डायलॉग, सारे गाने कमाल हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की वजह से मेरी इस फिल्म का एक गाना है जो ड्यूट है, लड़के की आवाज़ में भी है, साया तेरा साया मेरा चलता रहे संग संग साजना। माशा। ये गाना है और डायलॉग में, फिल्म के वाइंड अप में मेरी माँ बनी हुई है आलिया बुखारी साहबा। मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ पूरी फिल्म में। आलिया बुखारी साहबा जो है वो आकर मुझे वाइंड अप में, जब मैं अपने बाप के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता हूँ, मुझे थप्पड़ मारती हैं और मुझे कहती हैं कि निकल जाओ मेरे घर से। तो वहाँ पर मैं उसे कहता हूँ, माँ तुम भूल गई इस शख्स ने तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म किए। मैंने रातों को तुम्हें उठ उठ कर रोते देखा है। वो कहती है इस शख्स का मेरे ऊपर एहसान है। मैं उसे कहता हूँ, माँ इस शख्स का तुम्हारे ऊपर एहसान? कहती है हाँ। मैं कहता हूँ वो क्या? वो कहती है इससे शादी से पहले मैं एक लड़की थी, शादी करने के बाद इसकी वजह से मेरे वतन से तुम पैदा हुए और रब्बुल इज़्ज़त जन्नत मेरे कदमों में ले आया, ये इसका मेरे ऊपर एहसान है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मुझे ये डायलॉग बहुत ज़्यादा पसंद। अच्छा, आप ने कोई अरूज में जब काम करते हुए आप कर रहे थे तो कोई ऐसा वाक़या हादसा आया, पेश आया जो बहुत सुनहरी हो, जिसको आप बहुत लाइक करते हो, आपकी आंखों के आगे घूमता हो, लेटते हुए याद आता यार वाह, ऐसा कोई सीन मंजर वो बताएं। मुमताज़ साहब इस तरह की काफ़ी हैं। मैं फिर कहूँगा यही थोड़ी बात है कि आप जैसे डायरेक्टर, आप जैसे सीनियर लोग, साजिद साहब जैसे सीनियर लोग जब मेरे साथ वर्क कर रहे होते हैं, मेरे बाजू बने होते हैं, मेरे लिए इससे बड़ा एजाज़ या फ़ख्र क्या हो सकता है। इस तरह की कई वाक़यात हैं। मैं जब अना फिल्म की शूटिंग के लिए गया था जी जी। अशरफ शराजी साहब की इस्लामाबाद, नरगिस के साथ पहली दफ़ा मैंने गाना और सीन की है, वो लम्हे भी मुझे नहीं भूलते। इस तरह की काफ़ी हैं सर। अच्छा, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो जिसमें आंखें भर आएँ, नमी आ जाए, कोई सेंटिमेंट्स वाक़या, हादसा कोई पेश आया हो इंडस्ट्री में काम करते चलते, कोई वो बताएं। सर इस तरह के भी इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं। बल्कि अभी रिसेंटली इंडस्ट्री की जो ज़बूं हाली देख रहा हूँ, इंडस्ट्री के जो हालात देख रहा हूँ, और जो हालात देखे हैं आपने तो मुझसे भी अच्छे हालात देखे हैं, तकलीफ़ होती है। और यकीन करें आँख से आंसू निकले ना निकले, दिल रोता है कि यार हमारे स्टूडियो या हम लोग क्या थे और क्या हो गए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुमताज़ साहब। अच्छा, अरूज की और जवाल की ये तब्दीली आपने ये तब्दीली है, दिल नोट खून की। के आंसू रोता है। हाँ, सही है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अब आगे आप क्या इंडस्ट्री को देख रहे हैं कि इसी तरह ही जवाल पजीर रहेगी या अरूज आएगा? सर हम लोग मुसलमान हैं, एज ए मुसलमान एक सोच है कि रात के बाद दिन आता है सुभान अल्लाह। और दिन के बाद रात भी आती है। ठीक है ये रात लंबी हो गई है सर्दियों की रात की तरह, मगर उस अल्लाह ताला के हजूर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अभी मुझे पता चला है पिछले दिनों शाम साहब की एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर 3-4 फिल्में ऑन दी सेट है। वो दोबारा माशाल्लाह आ गए, एक बुल्ला और एक मीरा के साथ वो फैसल मूवर वाले, मतलब इस टाइम वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इसी तरह हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जिनमें शहजाद रफ़ीक साहब शुरू कर रहे हैं, जिनमें जवेद शेख साहब का सुना है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे कुछ छोटियाँ पार्टियाँ, छोटियाँ मीन्स फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, लगने के छोटे बाद होता है। बजट के हिसाब से सिर्फ। तो इंशाअल्लाह मुझे रब के घर करोड़ पर मर्तबा उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर अरूज इंशाअल्लाह हम लोग देखेंगे आमीन आमीन। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब आज आप ये बताएं कि आने वाले आर्टिस्ट जैसे कि सैलाब के पानी को कोई नहीं रोक सकता, इस तरह
लड़कियों लड़के मेल फीमेल को शौक होता है वो तो आएंगे, आएंगे। उनके लिए क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? इंडस्ट्री में कैसे आए वो? सर मेरी नाकिस राय जो है, आप माशाल्लाह खुद सीनियर लोग हैं, मेरी नाकिस राय के मुताबिक इंडस्ट्री में आने वाले न्यू कमर्स को थोड़ा सा ये सोच कर आना चाहिए कि ये शो बिज़ है। हम लोग माफ़ी के साथ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़हब बुरी चीज़ नहीं है, हम लोग थोड़े से दोगले कह लें या मुनाफिक कह लें वो है। हम काम को काम नहीं समझते, हम काम को भी मज़हब में घसीट लेते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर मज़हब को भी काम में घसीट लेते हैं। नथिंग, मेरी सोच है, गलत हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है सही हो, मेरी सोच है गलत भी हो सकती है, लेकिन काम काम है। तो मैं आने वालों को कहूँगा कि कोशिश करें काम को काम समझकर, बल्कि इबादत समझकर काम को करें, ना कि वो ये सोचें ये बोल्ड काम है या ये बुरा काम है या घर से कोई कह देता है या दोस्त अहबाब कह देते हैं। काम कोई बुरा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अपने ऊपर होता है। मैं कहूँगा कि जुर्रत और हिम्मत से आए न्यू कमर्स और इंशाअल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी देगा। आमीन, वेरी गुड। अच्छा, अब फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सर मैंने आपको पहले बताया है कि फ़िल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत जल्द यानी कि 2026 के मिड तक या एंड तक मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह एक दफ़ा हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री एक दफ़ा ज़रूर इम्प्रूव हो। आमीन, इंशाअल्लाह। आमीन। बस आप आपको लेसन दें, अब आपका बड़ा शुक्रिया। लेसन दें सबको, जी कोई लेसन दें, कोई सबक मोद बात करें, पर्सनल अपनी जी जी। ज़ाती राय, कोई मैसेज दें तो। मैसेज मेरा सबके लिए ये है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी चुका हूँ, क्योंकि इससे बड़ा मैसेज मैं नहीं समझता कोई है। काम को इबादत समझकर करें, काम को काम समझकर करें, जुनून और लगन के साथ करें। ये मत देखें कि काम के हवाले से हमारी क्या हालत है। इसकी ज़िंदा मिसाल मैं खुद हूँ। 3 दिन से मैंने शेव नहीं की, मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा, मैं कि सर मैं हाजिर हूँ, मेरा काम है। तो मेरी सबको ये राय है कि काम को ग्रोथ के साथ, पावर के साथ करें और नाकामी हो ही नहीं सकती। थैंक यू, आपने बड़ा टाइम दिया रुमान खान साहब। सर आप फिल्म इंडस्ट्री के हीरे हैं, मोती हैं, सर, आपकी हीरो हैं आप। सर आपकी तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू। आई सैल्यूट खुदा ऑल हाफिज। टीम। खुदा हाफिज। थैंक यू सर।